بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اوپر یہ بات گزری تھی کہ مبتدا میں اصل کیا ہے، بات شاید گزری نہیں، ضمن بات آئی ہو، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے لکھا نہیں نا، لیکن ضمن بات کیسے پتہ سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں انہوں نے بات عبارت یہ لکھی ہے وقت یکون المبتدا نکرۃ، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ معرفہ ہونا کیا ہے، مبتدا کی اصل ہے۔ اتنی بات جو ہمیں ضمن سمجھ میں آ رہی تھی، صراحتاً ذکر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں متن، تلخیص سے کام لیں۔ کہاں سے لائے؟ تو سابق میں یہ بات ہمیں معلوم ہوئی بین السطور سے کہ مبتدا کے لیے اصل کیا ہے، معرفہ۔ کبھی کبھار نکرہ کے بارے میں قول کرنا کہ کبھی کبھار مبتدا نکرہ ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھار سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیشہ اکثر معرفہ ہی رہتا، ٹھیک ہے، ہمیشہ نہیں بلکہ اکثر، ٹھیک ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات آئی تھی کہ جب نکرہ کیا ہو جائے، مبتدا جب بن جائے تو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے خصوصیت آ ہی جاتی ہے، اور تخصیص کی چند صورتیں میں نے بتائی تھی۔ کل کتنی صورتیں ہیں؟ 6۔ اس میں انہوں نے 6 صورتیں بیان کی ہیں، کسی میں اور کیا ہے، کسی میں 19 ہے، کسی میں شاید میں نے بتایا تھا 24 بھی بتایا تھا، 10 بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جامع کے اندر یہ سب باتیں انہوں نے لکھی ہیں آشی کے اندر، ہدایت النو کیا ہے، وہ قافیہ کی ترتیب پر لکھی گئی، ہاں، تو وہ میں باتیں چل رہی اس طرح سے۔ چلو دیکھو، اب وہاں سے انہوں نے کیا 2-3 مثالیں پیش کر دی، ولا عبد المؤمن اس کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اور رجل کردار ام امراتن اس کے بارے میں بات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ والا وما احد خیر من کا 4 کے بارے میں، 3 کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، 3 کے بارے میں آپ آگے پڑھنے جا رہے ہیں، توجہ سنیے، آپ غور سے سنیے گا۔ مثال کیا ہے، شرٌ احر ذا نابن، ذا ناب کتے کو کہتے، ٹھیک ہے۔ عظیم شرنی احر یحر ارار، ان باب افعال، کیا کرنا، بھوکانا، بھوکنے پر مجبور کرنا، عظیم شرنی کتے کو بھوکنے پر کیا کیا، مجبور کیا یا ابارا۔ اب یہاں پہ شرون کیا ہے، نکرہ ہے، ترکیب میں مبتدا واقع ہے، احر ذا نابن یہ کیا ہے، جملہ میں نکرہ کے برا خبر کے درجے میں چل رہا ہے، تو مبتدا ہے، لیکن کیا واقع ہوا ہے، نکرہ واقع ہے۔ اب اس میں جو تخصیص پیدا ہوئی ہے، اسی کے ساتھ جو حاشیے نیچے لکھا ہوگا اس میں ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے، لکھا ہوگا تخصص یا تخصص بالصفت المقدرہ تقدیرہ شر عظیم احر الکلب لا شر حقیر، لکھا ہے، یہ اس طرح کی عبارت نہیں ہے جو کہنے کی ہونی چاہیے۔ دیکھو توجہ، آپ نے پڑھا تھا بیٹے کہ تنوین کی کیا ہے، کئی صورتیں ہوتی ہیں، تنوین ترنم ہے، تمکن ہے، تنوین عوض ہے، اور کچھ ہے۔ تنوین کی بہت ساری صورتیں ہیں، جو کچھ آپ پڑھے ہیں نا 4-5-6 صورتیں، وہ محدود ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ استاد محترم نے قافیۃ النحو کے اندر یہ وعدہ فرمایا کہ تنوین کے بارے میں تفصیلی گفتگو نوادر النحو میں ہم ذکر کریں گے، اور نوادر النحو کتاب شیخ الادب استاد گرامی محمد حفیظ صاحب کی ابھی آئی نہیں، غالباً پروسیس میں ہے، اس پر کام چل رہا ہے، جب وہ آئے گی تو اس میں تفصیل کے ساتھ میں تنوین کے بیانات پڑھیں گے۔ ان میں سے ایک کیا ہے، تنوین تعظیم بھی ہے، کیا ہے، تنوین تعظیم، شرٌ تعظیم کے لیں گے تو شرٌ عظیم، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے آپ شرٌ میں تنوین کو مانیں گے تعظیم کے لیے، تو ایک صفت نکالے آپ، یعنی عظیم، بڑے شر نے ہی کیا کیا، کتے کو
भुखाया, भूखने पर आमादा किया, ठीक है। तो शर्रुन के बाद अजीमुन को मानेंगे सिफत मुक़द्दरा, जिस तरीके से ऊपर वर अब्दुल मुमिनुन में अब देखिए जब सिफत लेके आए मोमिन उसमें कुछ ना कुछ क्या है खसूसियत पैदा हो गई, ऐसे यहाँ भी क्या हो जाएगी। एक बात तो ये है शर्रुन आहार दाना बिन के शर के मुतदा वाक़ होने में एक कौल है। दूसरा कौल क्या है, उसी के बाद लिखा है औ तखस्सस या तुखस्सिसा बिकौनी फ़ाइलन फिल माना, या ये है कि लफ्ज़ शर जो है अगरचे मुबतदा वाक़े है लेकिन माने के एतबार से देखा जाए तो ये क्या है, ये फ़ाइल है, हकीकतन फ़ाइल नहीं है। जैसे मिसाल लेना आप ज़ैदुन कामा, तो कामा मुबतदा है, सुभान अल्लाह। और क्या है जी, ज़ैद क्या है पता है, बच्चों को बता रहा था कि मुबतदा के बारे में पूछे होंगे तो ज़ैद ही बोले होंगे। ज़ैद क्या है मुबतदा है, तो सोच समझ के बोला करो, ज़ैद नहीं कि बस आप बोल दिया कि क्या भाई बैल दूध देता है तो हाँ तवज्जो रखा करा दी। तो शर्रुन क्या है मुबतदा है ना, शर्रुन क्या है मुबतदा है ना। अब इसको यूँ मिसाल में समझिए आप, ज़ैदुन कामा है, ये जुमला क्या हुआ, जुमला इस्मिया हुआ, इसको पलट तो क्या हो गया कामा ज़ैदुन। तो जो जुमला इस्मिया में खबर अगर जुमला फेलिया हो, दरअसल जो मुबतदा बन रहा होता है वो मानन गोया के फाइल भी होता है। मिसाल कैसे लिया, उसको पलट के देखो आप, तो क्योंकि हुआ के जमीन जो लौट रही, कहाँ लौट रही हो, ठीक है। तो लफ्ज़न तो फाइल नहीं है लेकिन क्या वो मानन फाइल है। अब जब मानन फाइल है तो क्या हो जाएगा, उसका आगे उठा के दोबारा लिखा है। तो शर्रुन की तरकीब इस तरह क्या हो जाएगी, अहर्रा शर्रुन दानाबिन, तो मानन जब फाइल हो जाएगा तो क्या बनाएंगे उसको आप, शर्रुन है, शर्रुन अहर्रा दानाबिन, मानन क्या है, शर्रुन क्या फाइल है। तो जब मानन फाइल है तो उसको हकीकतन में फाइल की जगह पे रखो, क्या उसको बनाओ आप अहर्रा शर्रुन दानाबिन, ठीक है, ठीक हो जाएगा। अच्छा जब अहर्रा शर्रुन दानाबिन जब तरकीब हो जाएगी, अब इसमें क्या निकालेंगे, अहर्रा में जो ज़मीन निकालेंगे फेल के अंदर क्या निकालेंगे, ज़मीर मुस्ततिर। और आपने पढ़ा था बदल के बयान में क्या कि ज़मीर गायब से बदल बनाया जा सकता है, हर जगह नहीं, कुछ मखसूस सूरतें इस्तेमाल की है, मतलब मैंने बदलना पड़ेगा कि नहीं है, ज़मीर गायब से क्या है बदल बनाया जा सकता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा अहर्रा, तो जो बेटे इसकी मिसाल राशि वाले आपको देता हूँ, राशि में मौजूद है वासर्रू अन्नजवा अल्लदीना ज़लम, इसमें दो तरीके से तरकीब है कि असर्रू जमा का सिगा है, इसका फाल कौन है, अल्लदीना ज़लम, ज़लम ये क्या लगा ठीक है, ठीक है भाई। असर्रा असर्रा असर्रू जमा हो गया, जब इसका फाल कौन अल्लदीना आ रहा है तो उसको क्या होना चाहिए था, फाइल होना चाहिए था। वहाँ एक तरकीब ये की जाती है कि असर्रू में जो फाइल है कौन है, वहाँ में जमा डायरेक्ट फाइल नहीं बल्कि वो क्या है मुबदल मिनो है, और उसके बाद कौन आ रहा है बाद में अल्लदीना में, ये बदल है, बदल मिनो, बदल मिल क्या बनाएंगे आप फाइल बनाएंगे। तो वैसे यहाँ तरकीब क्या हो जाएगी, तो ये क्या है भैया, शर को बना दिया बदल ज़मीर मुस्ततिर से, कहा ज़मीर मुस्ततिर जो अहर्रा में कितना मौजूद है, शर क्या बना देगा, मुदमिर कौन होगा भाई, अहर्रा में हुआ ज़मीर वो कौन है, मुदमिर में है ना, क्या मुदमिर पहले उठाना है, पीछे में समझ में यार। तो अहर्रा शर्रुन दानाबिन में अहर्रा जो फेल है, तरकीबी सूरत हाल यही है शर्रुन अहर्रा दानाबिन, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि मानन क्या है, ये फाइल है, कैसे फाइल है मैंने तो बताया आपको, ठीक है। अब वो जब मानन फाइल है तो उसको तरकीब में वैसे चेंज कर लो, कैसे निकल लिया हमने, अहर्रा शर्रुन दानाबिन, जब बदल बना देंगे शर्रुन को क्या अहर्रा से, क्या हो जाएगा भैया, अब ऐसी सूरत में क्या बन जाएगा, ये बदल जो बन रहा है किससे बन रहा है, ये फाइल से बन रहा है ना, ज़मीर क्या है वही फाइल है, जब फाइल बनना है तो कैसे हमने कहा कि शर्रुन अहर्रा दानाबिन, ये क्या है मानन फाइल है, कैसे मानन फाइल है, तरकीब चेंज करके देख लो आप, क्या आपने किया अहर्रा शर्रुन
आहारा में जमीन हुआ निकाल, वो मुतलमिनो शरुन क्या है बदल, तो मुतलमिनो बदल के क्या होता है काम मकाम दोनों का हुक्म एक ही होता है तकरीबन, ठीक है। मुतलमिनो और बदल से मुराद क्या है, एक ही साथ मुराद है। तो गोया क्या पता चला कि आहारा में जो फाइल आप निकाल रहे हैं किसको, वह जमीन जो निकाल रहे बदल बना रहे हैं, तो गोया कि ये शरुन बेचारा भी क्या फाइल की जगह पे मौजूद है। ये और बात है कि क्या लफ्ज़ों में जाहिर नहीं हो रहा क्योंकि वो मुकद्दम हो चुका है। फिर क्या किया इन्होंने, फिर इसमें ये तवज्जो अहर्रा शर्रुन ज़ानाबिन है, ठीक है, असले में के एतबार से इसको निकाल लिया। अब इन्होंने क्या कर लिया, शर्रुन को मुकद्दम कर दिया किसके ऊपर, अहर्रा पर। अहर्रा शर्रुन था, शर को मुकद्दम अहर्रा पर क्या हो जाएगा, शर्रुन अहर्रा ज़ानाबिन। अब ये मुकद्दम करने की वजह क्यों पैदा हुई, इसलिए कि ताकि क्या हो जाए, हमें हस्र का माने हासिल हो जाए। और आपने पहले क्या कहा था, लिअन्न तक़दीम मा हक़्क़ु ताख़ीर युजिबुल हस्र, कि जिस चीज़ का हक क्या हो बाद में हो उसे पहले करते हैं, जिसका हक पहले हो उसको बाद में करते हैं। तो इस तरह की सूरत करने की बुनियाद पर क्या होता है, हस्र का माना पैदा होता है। जैसे मिसाल फिद्दारी रजुलन में हस्र का माना नहीं मिलेगा आपको, फीदारी ज़ैदुन में ये बात मिल सकती है। जी सुफियान समझ रहे हैं ना, इस बारे में हस्र और कसर का बयान जब पढ़ेंगे ना किसी के अंदर, इस बात को नोट कर लीजिए, उसमें पढ़िएगा। ये दो मिसाल में क्या फर्क है, सवाल लिख लो आप। फिद्दारी रजुलन, ठीक है, और फिद्दारी ज़ैदुन, ये तो तरकीब बता रहा हूँ, ठीक है। फिद्दारी रजुलन, दूसरी मिसाल क्या लिया, फिद्दारी ज़ैदुन। ये दोनों ही मिसाल के दरमियान हस्र और कसर के एतबार से फर्क है। एक मिसाल वहाँ फिट कर सकते हैं जहाँ क्या है, खबर को मुकद्दम करना वाजिब है। औ काना मुसहिहन लहू अलिल मुब्तदा, अभी आगे चल के इबारत आने वाली है, इसी के बाद मान इबारत आने वाली है। यहाँ पे देखो ये क्या है, औ काना मुसहिहन लहू, उसकी मिसाल में फिद्दारी रजुलन। लेकिन फिद्दार रजुलन आप चाहेंगे कि कसर हस्र के बाब से लेके चले हैं, बलागत में तो ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसकी इल्लत क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील जब आप पढ़ेंगे दुरुस्त बलागा उसी के बाब के नीचे हाशिए में मिसाल की रोशनी में इसको समझाया गया है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोग पढ़े नहीं दूसरे में छोड़ दे रहा हूँ, जब आप लोग वहाँ पहुँचेंगे तो उसको छोड़िएगा मत, ठीक। चलो समझ में आ गया। तो असल में क्या है, तरकीब शर्रुन अहर्रा ज़ानाबिन में क्या होगा, ये शर्रुन क्या है, मानन फाइल है, उसकी तरकीब क्या निकली है मानन के एतबार से, मान फाइल है, तो उसको असले में क्या था उसको निकालो आप, अहर्रा शर्रुन। फिर क्या किया, इसको बदल मुतलमिन बदल की तरकीब कर ली उन्होंने। तो जो मुतलमिन से जो मुराद होता है वही क्या बदल दोनों एक ही होते हैं। तो इससे क्या पता चला कि मानन ये फाइल है। मानन फाइल बताने के लिए हमने क्या कर लिया, मुतलमिनों की तरकीब निकाल के रख दी। अब फिर क्या किया, करने की बात यह है कि शर्रुन को मुकद्दम कर दिया। फिर अहर्रा शर्रुन था, शर्रुन को क्या किया आपने, मुकद्दम कर दिया। क्यों मुकद्दम किया, ताकि हमें हासिल का माना हासिल हो जाए। हासिल का माना जब हासिल हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा, तखसीस की सूरत कुछ ना कुछ नजर आ जाएगी, ठीक है। यानी अजीम शर ने ही क्या किया, कुत्ते को भोगने पर मजबूर किया, ठीक है। इस तरह से कहना कि तखसीस की सूरत कुछ ना कुछ आपको मिल जा रही है। शर्रुन अज़ीम, एक दो कौल है कि शर्रुन में जो तनवीन है वो क्या तनवीन है ताज़ीम है, यानी इसमें लफ्ज़ अजीम का इजाफा किया जाएगा जो इबारत में मौजूद नहीं है, पोशीदा है। इससे भी क्या हो जाएगा कि इसमें वही सूरत हो जाएगी, क्या हो जाएगा, तखसीस बेसिफत मुक़द्दरा, तखसीस बेसिफत मुक़द्दरा की वजह से वो चला जाएगा। दूसरा ये क्या है, तखसीस बेकौनी फ़ाइलन फिल माना, ये क्या आएगा, मानन ये फाइल है, इस बुनियाद पर क्या इसमें तखसीस वाला माना पैदा हो गया। फाइल क्या होता है, वो मुस्नद होता है, मुस्नद होता है वो क्या होता है, मुब्तदा होता है। तो काम हमारे से कहने के बन जाएगा, ठीक है। यूं डोरियां लगाते लगाते हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। आगे चलो। अब इसमें कुछ बातें और एक अलग तरीके से आती हैं, चाहो तो इंशाल्लाह बाद में पढ़ोगे कि कुत्ते की भूखने की अलग अलग कंडीशन होती है। एक उसका एक अपना एक मोहताज अंदाज होता है, प्यार भरा भूखना होता है। कुत्ते के अपने जब मालिकान को देखते हैं ना, हमारे अपने जब आका को देखते हैं क्या करते हो, भूखने का अंदाज अलग होता है। किसी अजनबी को देख ले
एकदम पूरे पुरजोश हो जाता हो, पुरजोश एकदम लाओ लश्कर के साथ में हमला, ऐसे होता है। तो उसी के बारे में जामे के हवाले से हाशिम कुछ बात उन्होंने लिखी है, पढ़ने से ताल्लुक है, इबादत से खाली नहीं। चलते ये हो गया। अब आगे जब वफिदार रजुल आया, ये बात आगे मिसाल में पढ़ेंगे कहाँ फिदारी रजुल। सवाल में आपसे किसी ने पूछ लिया कि फिदारी रजुल में से आप क्या समझते हैं, तो क्या क्या आपको समझ में बात आ रही है उसको आप लिख सकते हो। एक ही क्या है फिदार रजुल, किसकी मिसाल में है, नकरे मखसूसा की मिसाल में भी है। इसमें तखसीस कैसे पैदा हो जाती है, तो जी बेटे मुब्तदा का हक क्या है, पहले आना है, खबर का क्या है, बाद में आना है। इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, पहले कर दिया, तो इसमें तखसीस पैदा हो गया। लेकिन मेरा ये ज़हन कहता है कि मिसाल थोड़ा सा कहना कि मान नजर होता है जी। वरना कहते हैं फिदार जैदुन की तरकीब यहाँ पे होनी चाहिए जहाँ तक, क्योंकि फिदार रजुल में फिदार को मुकद्दम करने की एक वाज़ेह वजह जो है बाद में आ रही है। वो कहाँ है, और कहा मुखस्सिस ने लिया मुसहहियन कि अगर यहाँ तकदीम तारीफ नहीं करेंगे ऐसी सूरत में मुब्तदा का मुब्तदा वाक़या होना सही नहीं होगा। ठीक है, सेम उसकी मिसाल आगे आ रही है। तो ये तकदीम तारीफ जो कर रहे हैं कि मुब्तदा बनाने के एतबार से आगे मिसाल आ रही आगे आ रही है। कहाँ है, देखो नीचे लिखा हुआ है इन्होंने, वैदा तज़म्मन खबरू गुल मुफरद मारो सदरुल कलाम लिखा है, उसके बाद लिखा है औ काना मुसहहियन लहू। आपकी बात होनी चाहिए आगे, नहीं मारो सदरुल कलाम नहीं है, नहीं खबर को मुकद्दम करने की जो सूरत है देखो ना सवाल नंबर लिखिए 49 है, 49 इसमें मिसाल क्या दिया, फिदारी रजुल, मिसाल मौजूद होगा। चलो देखिए लिखा है इन्होंने क्या है, इसमें तखसीस है खबर को क्या जो कि ज़र्फ है मुकद्दम करके, तो क्या हो गया ये मुतय्यन हो जाएगा, इस पर हुक्म क्या मुतय्यन हो जाएगा कि ये खबर ही है, क्योंकि अगर मुकद्दम नहीं करेंगे तो इस सूरत में क्या रजुल का जो लग रहा है उसका मुब्तदा होना सही नहीं होगा। चलो लेकिन जो तखसीस है जो हासिल वाला के माने लेना चाहेंगे ना, उस माने की दवा से अगर यहाँ पे कलाम करेंगे फिदार रजुल, इसमें क्या है हस्र है, तो उस हस्र के माने को बताने के लिए, और मैं बलागत ने इसको नहीं लिया है। ठीक है, तो मैं आपका हवाला देना किसका, मुब्तदा नकरा वाक़या है उसमें क्या है तखसीस नवी दवा से लेना चाहेंगे तो यहाँ पे दुरुस्त है, लेकिन जो अहले बलागत ने जो माने लिया है उस एतबार से यहाँ पे दुरुस्त नहीं है। तखसीस और हस्र का माना अगर इसमें आप दिखाना चाहेंगे फिदार रजुल तो ये नहीं है। हम मुब्तदा के वाक़ होने की वजह से दिखा रहे हैं, वो आगे भी दिखाने वाले हैं। और काना मुसहहियन उस एतबार से कि मुब्तदा का मुब्तदा बनना सही हो जाए, आपने क्या तकदीम मुताखिर कर दिया, इससे क्या हो जाए कुछ ना कुछ तखसीस वाला माना पैदा हो जाए, ये ठीक है। लेकिन हस्र और कसर वाली जो बात है जो बलागत में बयान की जाती है वो माना आपको यहाँ पे हासिल नहीं होगा। वो माना हासिल करने के लिए आपको फिदार जैतून ही कहना पड़ेगा, इसकी तफसील आप आगे देख सकते हैं। चलिए शुद्ध हो गई। अच्छा इसमें तखसीस कैसे बेटे, तखसीस है क्या तकदीम खबर के जरिए से, कि जिसका हक बाद में आना था उसको हमने मुकद्दम कर दिया। इसको हेडिंग क्या लो आप, तखसीस बेतकदीम खबर, सब में मैं बताते जा रहा हूँ उसको लिख लिया करो। ठीक है, हेडिंग डाल देना क्या, जैसे मिसाल कौन सी आयत है वाला अब्दु मुमिन खैरुम मिन मुशरिक, इसमें क्या लिखेंगे आप तखसीस बिसिफात। उसके बाद वाला में क्या लिखेंगे आप, नीचे वाले में रजुल फिदार हम इमरातुन लिखा है, तखसीस बिल इल्म बिसबूत अल खबरी क्या लिखा है, अहादल जिनसैन जब अहादल जिनसैन इंदल मुतकल्लिम पूरा लिखिएगा आप इसमें। उसके बाद वाले में क्या वमा अहादुन खैरुम मिन का में इसमें लिखिए तखसीस बिसिफातिल उमूम, हर एक के बारे में आपकी किताब के अंदर मौजूद है। उनको निकाल करके ये हेडिंग डाल करके जब इबारत इस तरह की आएगी तब लिखिएगा। एक और सलाम अलैका असलम है सल्लम तो सलामन अलैका, इसमें तखसीस कैसे हुई उसमें लिखा है उन्होंने तखसीस बेकौनी मनसूबन इलल मुतकल्लिम, कोई एक चीज़ है उस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ किसी सामने वाले की तरफ मनसूब कर रहा हूँ, तो कोई आम चीज़ नहीं है, कोई क्या हो जाएगी निस्बत इलल मुतकल्लिम की वजह से क्या इसमें तखसीस का माना पैदा होगा कि वो तो है अगर जहाँ सलाम कोई भी सलाम, लेकिन जो मैं जो सलाम कर रहा हूँ वही कोई ना की क्या है मनसूब इलल मुतकल्लिम होने की बिना पर क्या हो जा रहा है
تخصیص کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ بالنسبة إلى فاعل المتکلم کہاں ہے؟ ہاں صحیح بڑے سلم تو میں سلام کرنے والے میں فاعل ہوں. میں جو کروں گا جس کو مقبول ہوگا تو متکلم کے نزدیک کیا ہو؟ میں متکلم ہوں نا. سامنے والا کون ہے؟ فاعل ہوں. کیا ہوگا؟ مخاطب چلے گا تو مسئلہ. سلم تو سلام علیک ابن مرفوع کو دکھ رہا ہے بیٹے. وہ جو یہ مرفوع کی نظر آ رہا ہے. سلم تو سلام علیک اس کی اصل ہے. فعل کو حذف کر دیا. اس کے بارے میں فعل کو حذف کرنے کی صورت میں کہاں واجب ہے کہاں جائز ہے قیاساً ہے یا غیر قیاسی ہے کہاں بیان آ رہا ہے. مفعول مطلق کے بیان میں انشاءاللہ پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے ہاں سنو سلم تو سلام ہے دونوں کا انہوں نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. اب سلام منصوب تھا. منصوب سے اس کو کہاں عدول کیا انہوں نے؟ رفع کی طرف. کیوں؟ تاکہ یہ دوام اور اس کو بتائے کیا ہوگا؟ استمرار کو بتائے. دوام اور استمرار کو بتائے. منصوب رکھیں گے تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا. ہم نے کیا کر دیا؟ جملہ فعلیہ سے کہاں لے کے چلے گئے؟ جملہ اسمیہ کی طرف. اے سلام علیکہ لے کے آ گئے. ٹھیک ہے ہم نے کہا سلم تو سلام علیکہ تھا تو جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ حدوث ہے تشدد ہے. اور جملہ اسمیہ میں بھائی دونوں جملے سے غرض کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے بات گزری ہے آپ لوگ پتا نہیں ہے. پیچھے اس طرح کی بات آئی ہے. صفحہ میں یہاں دیکھو 13 نمبر آیا ہے مرفوعات کے بیان میں لکھا ہے والفاعل جزء الجملة الفعلية التي هي اصل الجملتين بالاخبار. جملے فعلیہ میں جو اصل ہے جملے میں اصل میں کون جملہ فعلیہ ہے؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. اب جملے فعلیہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے حدوث اور تجدد. اور جملے اسمیہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوام اور استمرار. تو ہم نے کیا کیا؟ جملے فعلیہ سے اس کو کریکشن کر لیا جملے اسمیہ کی طرف. کیوں؟ تاکہ یہ استمرار اور دوام کی طرف بتائے. اس کے اثر کیا ہے بیٹا؟ سلم تو سلامت علیکہ. چلیں اب یہاں سے خبر کے بارے میں کچھ اور بات آنے والی ہے. کہاں خبر مفرد ہے کہاں جملہ ہے کہاں کچھ ہے. یہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ بقرعید کے بعد آپ لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے بات کی جائے گی. کچھ بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں آپ لوگ. صلی اللہ علیہ الحبیب.